Bangladesh are good partners for common development. সাম্প্রতিক সময়ে চীন বাংলাদেশকে শুধু সামরিক সরঞ্জামই নয় বরং মূল্যবান সামরিক প্রযুক্তিও হস্তান্তর করেছে। চীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে হালকা অস্ত্র बांग्लादेश इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। चाइना और बांग्लादेश की दोस्ती इतनी तेजी से मजबूत हो रही है कि इंडिया को अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी जो है वो फील होना शुरू हो गई है। इंडिया कह रहा है कि बांग्लादेश, जिसको हम कुछ समझते नहीं थे, अब वो तेज़ी से अपनी जो सिक्योरिटी है, जो अपनी दफाई ताकत है, जो डिफेंस पावर है, उसको इतनी तेज़ी से बढ़ा रहा है कि हम शायद आने वाले वक्त में उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे चीन ने बांग्लादेश को बहुत अहम किस्म की टेक्नोलॉजी और बांग्लादेश को अपने बहुत अहम किस्म के वेपन्स फ्राहम करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे कौन से वेपन्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ऑलरेडी बांग्लादेश को चाइना दे चुका है और आगे मज़ीद टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को दी जा रही है ताकि बांग्लादेश की डिफेंस पावर को मजबूत किया जा सके और बांग्लादेश इंडिया के शाना बशाना इंडिया को ठीक है मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत हासिल कर सके। बहुत अहम किस्म की अपडेट है। ये वीडियो आप लोगों ने मेरे साथ आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। বাংলাদেশ ও চীনের কূটনৈতিক সম্পর্ক এখন নতুন এক মোড় নিচ্ছে। সামরিক প্রযুক্তি, অস্ত্র সরবরাহ এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতার এই নতুন অধ্যায়ের সূচনা এখন প্রকাশ্যে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, দুই দেশের এই গভীর সম্পর্ক কি সত্যি ভারতের জন্য বড় একটি বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে? বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইশতিয়াক হোসেন। এশিয়ার অন্যতম পরাশক্তি চীনের সাথে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক 50 বছর পূর্ণ করেছে। দীর্ঘ সময়ে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে, যা বাংলাদেশের জন্য একটি গর্বের মুহূর্ত। কারণ চীনের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে দুই দেশের পক্ষ থেকেই সমানভাবে পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এমন তথ্য উঠে এসছে ন্যাশনাল ইমেজ অফ বাংলাদেশ ইন চায়না নামের একটি রিসার্চ পেপারে, যা গত 11 মার্চ সেন্টার ফর অল্টারনেটিভস এর মাধ্যমে ঢাকায় প্রকাশিত হয়েছিল। Bangladesh are good partners for common development. সাম্প্রতিক সময়ে চীন বাংলাদেশকে শুধু সামরিক সরঞ্জামই নয় বরং মূল্যবান সামরিক প্রযুক্তিও হস্তান্তর করেছে। চীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে হালকা অস্ত্র তৈরির নিজস্ব প্রযুক্তি প্রদান করেছে, যার মধ্যে রয়েছে রকেট লঞ্চার এবং কাঁধে বহনযোগ্য বিমান বিধ্বংসী মিসাইল। স্বাস্থ্যকর অল টাইম ফ্যামিলি কেক, সব সময় অল টাইম হেলদি লাইফ। এই প্রযুক্তি হালকা সামরিক সরঞ্জাম হিসেবে চিহ্নিত হলেও এগুলো যেকোনো যুদ্ধের গতিপথ পাল্টাতে সক্ষম। যেমন রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে আমেরিকার দেয়া অস্ত্র ব্যবহার করেই ইউক্রেনের সেনাবাহিনী রুশ বাহিনীর অগ্রযাত্রা রুখতে কিছুটা সক্ষম হয়েছিল। এছাড়া চীনের সঙ্গে সামরিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে বাংলাদেশকে রাইফেল, রকেট লঞ্চার, ম্যানপ্যাড, হালকা যানবাহন সহ অন্যান্য আরও বিভিন্ন সামরিক সরঞ্জাম চীনের পক্ষ থেকে সরবরাহ করা হয়েছে। এর ফলে দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে বলেই ধারণা বিশেষজ্ঞদের। চীন আধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন সামরিক সরঞ্জাম কম খরচে সরবরাহ করে থাকে, যার ফলে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাত এখন চীনের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক সময়ে চীন থেকে বাংলাদেশ সামুদ্রিক টহল জাহাজ, করভেট, ট্যাঙ্ক, যুদ্ধবিমান এবং ক্ষেপণাস্ত্র আমদানি করেছে। এদিকে দিল্লির কূটনৈতিক মহলে চীন ও বাংলাদেশের এই সম্পর্কের দৃঢ়তা দেখে নতুন করে উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে। ভারত এতদিন দক্ষিণ এশিয়ায় একচ্ছত্র আধিপত্য দাবি করে আসছিল, কিন্তু এখন চীনের কৌশলগত অগ্রযাত্রায় ভারত নিরাপত্তা হুমকির মুখোমুখি হয়েছে বলেই জানা যায় ভারতের স্থানীয় গণমাধ্যম দ্য ইকোনমিক টাইমসের একটি প্রতিবেদন থেকে। অন্যদিকে মার্চের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস চীন সফরে যাচ্ছেন। রাষ্ট্রীয় সফরটিতে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সাথে বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা, যা দুই দেশের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে বলেই আশাবাদী বিশ্লেষকরা। এখন দেখার বিষয় প্রধান উপদেষ্টার আসন্ন চীন সফর বাংলাদেশের জন্য আরও কি সুখবর বয়ে আনে। ইশতিয়াক হোসেন, এটিএন নিউজ। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। बांग्लादेश और चाइना की दोस्ती मजबूत हो रही है
और इतनी मजबूत हो रही है कि इंडिया को अब अपनी सिक्योरिटी को लेके बहुत सारे खदशात जो हैं वो खड़े होना उनकी शुरू हो चुके हैं। और इंडिया को अब ये महसूस होने लग गया है, दिल्ली में जो हलचल मची हुई है कि बांग्लादेश और चाइना के जो रिलेशन है मिलिट्री लेवल पे हों या इकोनॉमिकली हों, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं कि चाइना ने यहाँ पे ऑलरेडी बांग्लादेश को ठीक है, बहरी जहाज़ हैं, जो फाइटर जेट्स हैं और यहाँ पे मिसाइल्स हैं, बहुत अहम किस्म की चीज़ें जो है ऑलरेडी वेपन्स बांग्लादेश को दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अब मज़ीद बांग्लादेश को चाइना एम्पावर करना चाहता है, बांग्लादेश की डिफेंस को मजबूत बनाने जा रहा है। और ये जो डिफेंस पावर है वो इतनी मजबूत हो जाएगी कि बांग्लादेश इंडिया जैसी कंट्री के साथ भी लड़ने की सलाहियत हासिल कर लेगा। यहाँ पे जी कहा जा रहा है कि चाइना ना सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्ट करेगा, बल्कि डिफेंस लेवल पे भी बांग्लादेश के साथ बहुत सारी मिलिट्री डील्स जो हैं वो आगे साइन होने जा रही हैं। यहाँ पे जी बांग्लादेश को रॉकेट लॉन्चर बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो फराहम की गई है। अब बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट बनाने की जो है तैयारी हो रही है और बांग्लादेश को चाइना टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। और बांग्लादेश को कहा गया है कि आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए हम आपको फराहम करेंगे। हम पूरी तरह बांग्लादेश की डिफेंस पावर को सपोर्ट करेंगे। ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि इंडिया ने कभी नहीं चाहा था कि बांग्लादेश और चाइना के रिलेशन जो हैं वो मजबूत हों। लेकिन यहाँ पे जैसे ही चाइना बांग्लादेश के रिलेशन मजबूत होना स्टार्ट हुए हैं, बांग्लादेश की डिफेंस पावर बढ़ना शुरू हो गई है। यही वजह है कि इंडिया कभी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश और चाइना के रिलेशंस आपस में मजबूत हों। यही वजह है कि जो शेख हसीना है वो भी चाइना के साथ सच बड़े प्रोजेक्ट्स करती हुई नज़र नहीं आती थी। उनके प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने किए, लाइक शेख हसीना के दौर में जो भी प्रोजेक्ट्स हुए वो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए थे और शेख हसीना ने बहुत लिमिटेड वे में रह के चाइना के साथ जो अपना काम है वो किया। लेकिन यहाँ पे अब मोहम्मद यूनस की सरकार आने के बाद बांग्लादेश में रेवोल्यूशन आ चुका है और ये रेवोल्यूशन बांग्लादेश को बहुत आगे लेके जाने वाला है। बांग्लादेश फुली टर्न होने वाला है और यहाँ पे बांग्लादेश अब बनेगा चाइना। चाइना जितना मजबूत जब बांग्लादेश बन जाएगा तो किसी भी कंट्री की जरूरत नहीं होगी कि वो बांग्लादेश की तरफ मैली आंख से देख सके। आप लोग क्या कहेंगे? आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ लाजमी करें, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों से जी फिर से मुलाकात होती है। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।